please. Yes, are you prepared or not? Come on, wake up. What's problem? Why you not prepared? Yes? Anyone? Let me share your problems. Yes, you don't understand the subject. That's why we are not prepared. Yeah, you don't have any idea. But yes, you have an idea, but you don't know how to prepare it. Yes? Why you not prepare project? Come on. Hello? Please tell me. I know the answer. Yes? You don't get any kind of internal marks, guys. Okay? It's important. Tell me, why you not prepare any project or any chart? What happened? Yes, Pratiksha, Omkar, Chaitanya. What's the problem? Nikita Jadhav. 6 people are here. 5 people are here. What about others? It's a project management subject. Yes? Or you want to read only theories? Don't want to do anything? Come on. Also, no one have prepared the your SIP PPT also. In the time of presentation, you have problem. You face the problem. You don't know what are you written in your SIP. I know a lot of people are just make copy and paste, right? Either we approval, but I don't know what happened after submission and on the time of Viva. Yes, am I audible? Yes or no? कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ डिग्री लेना है एमबीए की, नहीं बनना है मैनेजर? यस, टेल मी. कम ऑन. Excuse me. बनना है कि नहीं बनना है? Okay, as you wish. Today we'll discuss the case study of project management and will share my screen. Have you seen this? Yes. Have you seen my PPT? Yes, ma'am. Yeah. So a case study of project management. What kind of project and how we prepare a case study regarding it. This is the company SEMLS Technology, and he has prepared, it's a project. Okay, so we have seen what kind of project they prepare, the logo, the and what kind of technology they use in this. Okay. This case study in project management is CMLS. It's a big technology company, and council white paper that covers had some
MLS leverage technology to improve the effectiveness of MLS. आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की केस स्टडीज मिलेगी. ओके, सो दिस वन इज इजी, आपको अंडरस्टैंड होगी एंड यू feel like that ki yes, that kind of project we need to prepare. That's why I choose this. Okay, so MLS leverage technology to improve the effectiveness of that project management. Okay, उन्होंने जब project prepare किया था तो on that time he just prepare that kind of project. This white paper shares some of the tactics and techniques of Pratik Williamson. ओके, उसने जो प्रिपेयर किया है उसका है, उसमें उन्होंने दिया है कि क्या क्या व्हाट दे आर इंक्लूडिंग. ठीक है, फ्लोरिडा रीजनल का प्लान है, व्हाट दे आर डूइंग देयर, अ रीजनल मल्टीपल लिसनिंग सर्विस प्रोवाइडर. व्हाट इट इज? रीजनल मल्टीपल लिसनिंग सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड इन ओरलैंडो, फॉरेन का है ये. ठीक है, इट्स अ सर्विस एरिया कवर्स सेंट्रल फ्लोरिडा एंड द मोस्ट densely populated area along the state west coast, and the company provides services to a subscriber base of more than 50,000 real estate agents and brokers across 14 shareholder associations. How many? 14 shareholder associations. Right? जैसे पूना में हम लोग 5, 7, 8 गांव यहाँ वहां के ले लिए, तो that kind of they collected, and it ends some services to 3 orders. Okay, so that one is MFRMLS is one of the largest provider of multiple listening service in the world. Okay, that is the project था उनका. Now how they handle it? These projects has a team of project manager lead by Pratik whatever Williamson, and earn a project management professional certification from the Project Management Institute. Right? He just hand over the project, he completed it, and after completion, he got a certificate of project management from Project Management Institute. Right? So how उन्होंने उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि हाउ दे गिव द प्रोजेक्ट्स. So certified, it's a certified executive lead project is nearly every country around the world, and program was developed for companies that have adopted many principles and project management. Okay, then this is a project management professional certification, require 4-year degrees. It doesn't matter, वो सिर्फ केस देखना है कि हाउ इट इज डूइंग. ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट था उन्होंने हाउ दे विल डू इट स्मार्ट प्रोजेक्ट. अब उस प्रोजेक्ट को जो भी उसको मिला होगा, सबसे पहले हम मेजरिंग करते हैं ना कि एक टाइम बाउंडिंग होता है. इतना हमने सीखा है प्रोजेक्ट में, जब सारा प्रोजेक्ट करते हो कि हमें कितने टाइम में करना है, उसका कैलकुलेशन, पहले केस स्टडीज पढ़नी है, पिछले साल का कितना हुआ था, how time bounding, how will manage the time. Okay, how much people we required, what is the cost of project, and on and all. Okay, so when Pratik Williamson got a project, before start he just measured the project. Okay, while MLS provide have varied staffing capabilities in the United States, only the largest MLS in the nation seems to be able to afford highly trained, fully time project managers. Highly trained, expert people required to complete the project. Okay, so for the most part, these project managers collaborate between MLS and its vendors. Okay, they visit the markets, they study the market, they research the market, and find some trained project managers who have a good experience about the project. Right?
and they visit the markets, they collect the vendors, they meet the vendors, and appreciating this, Williamson provided one example of a project plan developed to launch e-property watch. Okay, because they required land, they required some kind of place to complete their project. So he developed a plan to launch e-property watch. Nowadays, it's easy to find out some kind of rent flat, some kind of property, right? So he just launched a e-property watch, a product offered by CoreLogic as a free service to MLS. Okay, he just provided a free service. The project management techniques applied in the scheduling and launch of e-property watch can be considered a best practice applicable to MLS of all sizes. Okay, nowadays we have seen everywhere we get one buy one get one free. Okay, lot of offers. Now we are too much developed, too much, because easily get everything. Okay, if we're talking 80s, 70s, even 90s also. Okay, slowly we develop, and the time of corona, we found the things are getting easily. We don't have affected too much, right? Except physical and health. Otherwise, we'll get things very easily. Am I right? Yes, am I right or wrong? Hello, am I audible? What I'm saying? You know, every people, even Sunil sir says like that, you never answered. Gadge sir says you never answer when he asks any questions. Chaudhary sir said ki you, when they talking with you, you don't ask. So what kind of guys you have? I'm just asking, you audible or not? What I'm saying, you understand or not? Hello? Audible and we और you are tired कि सब लोग बूढ़े हो गए हैं, बस एक ऐसे करना है इसलिए कर रहे हैं. नेवर गेट एन आंसर. प्लीज कीप इट अप. वेकअप. अभी से आप, अभी तक आप सो के रहेंगे तो कैसा होगा आपका? किसी को भी मार्क्स नहीं दूंगी मैं इंटरनल, आप देख लीजिए, कोई बोलता ही नहीं है क्लास में. All 8 people are, what are you doing? So Pratik William, yes, what I am saying ki on the time of corona, what kind of battle you have find? Yeah, except physical and mentally we are frustrated because of no good hospitals and hospitality is available in our country, but others we are doing good. Other facilities will get it. So even of MLS may not have a dedicated project manager, your organization is still involved in project management. Okay, so a common critical component of successful project management, for example, is defining what needs to be done and how it is going to be done. So once these items are defined, someone has to develop the plan and manage the scope and schedule of the project, especially as inevitable changes occurs. Right? Nowadays, what happened if someone is doing something new research, they will get a patent because he feel like that कि ये मेरा innovation है and no one can make same thing again. That's why he just take his copyright. Okay, पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही कम थे, but nowadays we have seen a lot of people have register for patent, register for copyright and all. Okay, so यहाँ पे भी उन्होंने यही कहा है कि they will just develop and they will provide a free services to all, ताकि लोग उसे समझे, लोग उसे यूज करें, है ना. Nowadays we have also seen कि इजीली हमें सारी चीजें अभी अवेलेबल हो रही है, सारी ऑनलाइन हो गई है, आपको जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल रहा है, just you need to apply for that. So Pratik William just measure and start to work with smart.
Smart means specific, measurable, attainable, relevant and time based. Okay, so उससे क्या होने वाला था, उसे ही हेल्प मिलने वाली थी और उसका ही प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट होने वाला था. So like most management models, Williamson identified process that serve to organize the ongoing activity of the project, planning, executing and controlling. Okay, he just use 4 kind of things, and that is planning, executive, controlling and others. Okay, so process may also include additional steps within the project such as initiating and closing. So but each must be clearly defined. What kind of planning you need to do, what is the level of activity, what is the project actually you have to decide. Then you just plan, and after planning you just executing this plan, and after executing you need to controlling, and all 4 thing is going good, then your plan is finished on time, close on time. Your project is complete and fulfilled on time. Okay, so that is the smart work. Next. So what is this? Is the project ई प्रॉपर्टी वॉच प्लान आउटलाइन. तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने तो नाम दे दिया कि ई प्रॉपर्टी वॉच प्लान आउटलाइन. ये उसने उसके दिमाग में थॉट्स आए कि मुझे ऐसा करना है, बट फॉर दैट प्लान व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स ही टेक और व्हाट्स हिज प्लान्स. सो दैट इज इनिशिएशन एंड प्लानिंग. सबसे पहले उसने प्लानिंग में क्या क्या किया, क्रिएट चार्टर एंड स्टेक होल्डर्स असेसमेंट. उसके लिए उसने क्या किया होगा, मार्केट का सर्वे, वेंडर्स कलेक्ट किए, वेंडर्स के इंटरव्यूज लिए, वेंडर्स से पूछा कि आपको क्या तकलीफ होती है, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर्स यू फाइंड व्हेन यू मीट टू अदर्स. अगर आपको मटेरियल नहीं मिलता है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करते हो, है ना. ये वो ऑल सर्वे ही हैज डन, and he just note down that create charter and stakeholder assessment, right. Then identify and document requirements. फिर उसने सोचा कि यस ये है प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्या क्या करना है, कहाँ का कंप्लेंट्स करनी है, क्या क्या फॉर्म्स करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने से काम होता है क्या. सो देन ही मेक अ लिस्ट and identify what kind of documents he need to submit at there. Now scope work and conduct risk and opportunity assessment. What he did, scope work, okay, and conduct the risk and opportunity assessment. उसने देखा कि क्या है इसमें स्कोप, अगर ये काम हो जाता है देन उसमें कितने रिस्क है और कितने चांसेस है सक्सेस के, हाउ मच सक्सेस, हाउ मच प्लान विल बी सक्सेस. ओके, देन क्रिएट हाई लेवल प्लान. यस, अगर ये हो जाता है तो उसके बाद का प्लान क्या होगा, अगर ये डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो जाता है, स्कोप ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाता है, रिस्क फाइनल हो जाती है, आफ्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ रिस्क वी नीड टू टेक. सो उसने हाई लेवल का भी प्लान बना लिया. उसमें क्या किया, उसने कंडक्ट प्रोजेक्ट ऑफ मीटिंग. ओके, किक ऑफ मीटिंग. मीटिंग में उसने प्लान किया कि यस अगर ये सब हो जाता है तो ये प्लान, ये प्रोजेक्ट में प्रिपेयर करूंगा. अब प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए हाउ व्हाट ही डिड, सो एग्जीक्यूटिंग. उसने एग्जीक्यूटिंग का प्लान बनाया कि कैसे मुझे एग्जीक्यूट करना है, हाउ मच पीपल वी रिक्वायर्ड, हाउ मच कॉस्ट वी रिक्वायर्ड, हाउ मच मशीनरीज एंड ऑल ही रिक्वायर्ड. Okay, he executing the plan and monitoring and controlling. He just deciding how many people are monitoring, how many people are controlling, how he controlling all these e-property watch plan, and it will be success. Okay, then implement in staging environments and slowly of course जब हम सारे एक आध नई जगह जाते हैं तो हमें वहां का कुछ पता नहीं दिया, but slowly we are adjust that kind of environment, right. So उसने इम्प्लीमेंट स्टार्ट किया एंड एनवायरमेंट्स को मेजर करना शुरू कर दिया कि यस यहाँ क्या है, सारी चीजों को. देन क्रिएट QA प्लान. ठीक है, क्विक असेसमेंट प्लान उसने तैयार किया कि यस अभी यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो कितने दिन में होगा. कंडक्ट QA, फिर उसने कंडक्ट करना चालू किया, डेली फॉलो करना चालू किया, रिव्यू QA रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेजिंग्स,
वो रिपोर्ट्स लेने लगा, फीडबैक लेने लगा डेली, जितने अभी काम हो रहा था या कुछ भी, इम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ऑफ क्यूए, हर जगह से उसको फीडबैक आने लगा। कंडक्ट क्यूए इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, सारी जगह से रिव्यू क्यूए रिजल्ट्स, रिपोर्ट फ्रॉम प्रोडक्शन, क्रिएट ट्रेनिंग डॉक्यूमेंटेशंस, ओके, एवरीथिंग। ठीक है, क्रिएट सपोर्ट डाटा डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएट मार्केट प्लान एंड मटेरियल्स, कंडक्ट गो और नॉन गो मीटिंग्स, है ना, जो जो उसे लग रहा है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, वो सारी चीजें वो कर रहा था। सेंड एसोसिएशन स्टाफ कमिंग सून कम्युनिकेशंस, कंडक्ट स्टाफ ट्रेनिंग, send customers coming soon communications, send association staff relaunch notice, launch day, expose a product links to customers, conduct post lunch, send launch day communications, closings, conduct lessons learned and all. Okay, ये सारी चीजों को वो क्या कर रहा था, चेक कर रहा था। सारी चीजें उसने जो जो लग रही थी उस ई प्रॉपर्टी वॉच प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सारा उसने प्लान किया, मीटिंग्स ली, सब प्रिपेयर कर लिया प्रोजेक्ट, ओके, रिपोर्ट जो बना रहा है वो। सो एवरी स्टेप इन अ प्रोजेक्ट, हाउ डिटिंग टाइमलाइंस, उसने टाइम डिफाइनिंग टाइमलाइंस, टाइम को कैसे उसने डिफाइन किया, कितना टाइम कहाँ यूज करना है, कैसे एनालिसिस किया, कैसे मेजर किया टाइम को। सो एवरी स्टेप इन अ प्रोजेक्ट नीड्स टू बी क्लियरली डिफाइंड and assign an estimated time of completion in advance of the project launch. ओके, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उसे जितना टाइम चाहिए था उतना उसने लॉन्च किया, उतना टाइम वो हर जगह पे लॉन्च करता रहा। द ओवरऑल टाइमलाइन फॉर दिस प्रोजेक्ट इज 83 hours 75 minutes. ओके, 83 hours, मतलब आप काउंट कर लीजिए हाउ मच इट इज। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, सो द एस्टिमेट वे बेस्ड इन पार्ट ऑन एक्सपीरियंस। ही डिसाइडेड कि नहीं, मुझे इतने ही टारगेट में वो क्या करना है, फुलफिल करना है। ही जस्ट डिसाइडेड कि नो, दैट इज द प्लान एंड वी नीड टू फुलफिल ऑन पर्टिकुलर टाइम। ओके, एंड ही completed and he shared his experience regarding that project. So here are the some details how each step in the e-property watch projects are. So defined, assigned to a responsible party. Okay, party कैसी होनी चाहिए, is he responsible or not. Then and provided a time estimated in addition to this information. Okay, this is the scope, the work effort and conduct the risks opportunity assessment and what was the critical to the success of implementations. Okay, so after completion the project, he note down what kind of criticism comes when he completed the projects. Okay, what kind of implementation was done and success his project. So he just make a plan. You can see this diagram how he prepare this plan. Okay, so wait a minute. Okay, so he make a plan. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कैसे मंथ वाइज वीक वाइज हम लोग बनाते हैं, तो इसने क्या किया, मंथ वाइज किया। देखिए यहाँ पे जैन के बाद मार्च में, मतलब 2-2 महीने के गैप में उसने क्या क्या वर्कआउट किया, क्या क्या फीडबैक लिया, ऑन दैट बेस पे उन्होंने प्लान बनाया है। तो जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर 2017 दिया, फिर 2018, 2000, तो इस तरह से उसने स्टेप आउट करके इसका डायग्राम बनाया है। इसका टेबल बना होगा देन, बट यहाँ पे उसने डायग्राम दिखाया है और उस डायग्राम में उसने मेंशन किया है कि कितना उसने, जैसे 75% इन द मंथ ऑफ जुलाई, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथ ऑफ जुलाई 75% वर्क कंप्लीटेड, राइट। So if you have seen, then you realize कि yes, that kind of plans is prepared. और आपको भी ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट का प्लान बनाना है। ओके, मैं जब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ तब से बोल रही हूँ, बट नो वन कैन सबमिट इट स्टिल। ओके, सो मैं मार्क्स देने वाली नहीं हूँ जब तक कोई भी बच्चा मुझे, जब तक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रिपोर्ट नहीं देगा, मैं किसी को मार्क्स नहीं दूंगी, इंटरनल मार्क्स। ओके, now
he is how he make EPW plan, means E property watch plan timeline कितना था देखिए, उसने 80 आवर्स में कैसे कंप्लीट किया है वो दिया है। सबसे पहले 83 आवर्स में से उसने इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग में 14 आवर्स लगा दिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट था। प्लानिंग बनाने में ही कभी कभी 2-2 3-3 दिन, लेकिन उसने कितना समय दिया, सिर्फ 14 आवर्स। इमेजिन हाउ मच, मतलब आप इतना सोचिए कि जब 14 आवर्स में वो प्लानिंग कर सकता है एक 2 दिन के प्रोजेक्ट का या 4 दिन के प्रोजेक्ट का, हाउ इज ब्रिलियंट, हाउ ही एक्सपर्ट, हाउ काइंड ऑफ नॉलेज ही हैज। ओके, इट्स अ मास्टर। नाउ क्रिएट चार्टर्स, स्टेक होल्डर्स असेसमेंट के लिए उसने 4 आवर्स लगाए, ठीक है। और उसमें उसने स्पॉन्सर्स किया, प्रोजेक्ट मैनेजर्स बुलाए, सबके साथ मीटिंग किया, सबको उनका उनका टास्क असाइन किया। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ओके, वेंडर के साथ मीटिंग किया, वेंडर से बातचीत की, स्पॉन्सर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ बैठ के उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो डिसाइड किया। देन स्कोप वर्क एंड कंडक्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, उसके लिए उसको 4 आवर्स लगा। ओके, देन क्रिएट हाई लेवल प्लान, देन उसने हाई लेवल प्लान बनाया 2 आवर्स में, ठीक है। कंडक्ट प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग, लास्ट मीटिंग, किक ऑफ मींस लास्ट मीटिंग, डू डाई डू, बस ये लास्ट मीटिंग है, ये तारीख तक मुझे कंप्लीट चाहिए, दैट इज द kick off meetings. Okay, so it's only 1 hour. Okay, and what he discussed that meeting, project manager, how many people are there, project manager, marketing coordinator, QA, quality assessment technicians, and sponsors, trainer, vendors, and all. Got it? So after that executing, monitoring and controlling में उसने 53 and 75 hours लगा दिए। सिर्फ वो बस डेली देखता था, एग्जीक्यूट करता था, मॉनिटरिंग करता था, कंट्रोलिंग करता था, यस यस, कमिंग कमिंग कमिंग, डन डन डन, फीडबैक इज डन, फीडबैक इज डन, एंड रिपोर्ट प्रेजेंट करता था। एंड लास्ट में उसने इम्प्लीमेंट इन स्टेगिंग एनवायरनमेंट्स, मींस वेंडर के साथ जो जो इम्प्लीमेंटेशंस था रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर वर्क, या जो भी उसमें बैरियर्स थे, तो उसे इम्प्लीमेंट करते हुए उसने वेंडर के साथ जो भी मीटिंग लिया उसमें 8 आवर्स स्पेंड की। ओके, सो ही जस्ट मेक देयर प्लान कि उसे कितना टाइम लगेगा और कौन से टाइम में कितना कितना उसे प्लान करना है, तो वो उसने बना के दिखाया है विद डायग्राम, विद टेबल्स एंड विद टाइम इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद उसने क्रिएट जो भी क्वेश्चन आंसरिंग का प्लान था उसमें 4 आवर्स, फिर उसने और क्वेश्चंस रिक्वायर्ड प्रिपेयर किए, उसके लिए 6 आवर्स, सम रिजल्ट्स जो आए उसे चेक करने के लिए उसने 1 आवर स्पेंड किया, इम्प्लीमेंट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसने वेंडर के साथ जो करना था 8 आवर्स स्पेंड किया। सो ऑल टाइम, वो व्हाटएवर द टाइम, जो भी टाइम जहां जहां लगा है उसको उसने दिखाया है कि उसे कितना समय लगा है, ऑल यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चंस है? Yes or no? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We understood. Why you not prepare project? Yes. Why you not prepare project? SIP is not your project, okay? सिर्फ नहीं बोलने से होगा, आपको प्रोजेक्ट बनाएंगे नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इंटरनल आप ध्यान में रखिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाउ ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कैसे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड विद इन अ टाइम लिमिट, मीन्स स्मार्ट वर्क वही होता है जो टाइम में फिनिश्ड हो, राइट? और कैसे उसने टाइम में उसे फिनिश्ड किया प्लान करके। सो ऑल दिस प्रोजेक्ट्स, तो ऐसे ही आपको सारे प्रोजेक्ट को एक प्लानिंग करना है, उस प्लानिंग को टाइमिंग देना है और उस पर्टिकुलर टाइम में ही उसे क्या करना है, फुलफिल करना है और उसे कंप्लीट करना है। गॉट इट? सो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिलोंग टू कोरलॉग, मीन्स जो भी उसने प्रॉपर्टी वॉच प्लान बनाया, सो उसे सक्सेस बनाया, है ना? सो जो भी मटेरियल लगा है या जो भी उसमें रिक्वायरमेंट था, जो भी एफर्ट्स लगे हैं, सो ऑल पीपल दे जस्ट गैदर, दे उनके साथ मीटिंग किया एंड
they will success the plan. So quality of assurance is the quality assurance technicians is responsible to make sure that the product is properly tested before the launch. Everyone has a responsible person, and Pratik Williamson just assigned responsibility to, no, it's your responsibility and you have to fulfill it. जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको करना है, बट आपके पास टाइम ही नहीं है, आप बोलते हो कि मैम नहीं करेंगे, मैम ऐसे ही बोल रहे हैं, बट नो, इट्स नॉट अ जोकिंग. हाँ, मैं पहले ही बोल देती हूँ. लास्ट टाइम भी बच्चे फेल हुए हैं. अगर आपको होना है तो वैल्यू द टाइम. जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? ओके, तो करना ही पड़ेगा. इसलिए टाइम के साथ नो एडजस्टमेंट. ओके, क्योंकि आपको सीखना है, आपको ही काम आने वाला है. So all people are supports, and manager is also involved to ensure the proper handling of the products implementations and operations. Okay, responsibility, risk is most important factor any kind of project. As a project manager, you should have handle any kind of responsibility and complete and success to make success your project. So tracking projects to completion, how you track it? So this is the way they tracking. मीन्स आजकल तो सारा डिजिटाइजेशन है, तो उसने भी कंप्यूटर के इससे सारा जो भी डेली कंप्लीशन होता था, वर्क होता था, फीडबैक्स आते थे, वो सारे अपडेट्स होते थे. सो इट्स गुड टू ट्रैक the completion of project, the way of project. आज कितना complete हुआ, 30% हुआ, 10% हुआ, 50% हुआ. So that is the way he tracks. So while most plans are written to assume a perfect right world, so reality requires certain contingencies are built into the plan. And for that, one way to handle a contingency event is to create a precedencer, which is define what needs to happen before something else happens. So this is the way कि किस तरह से वो हो रहा है. जैसे सेल्स कितना हुआ ये आपको चाहिए, तो रोज अगर आपका सेल्स अपडेट होगा तो यू विल गेट इट. परचेस कितना हुआ यू विल गेट इट. कैश कितना आया यू विल गेट इट, अगर रोज अपडेट होता है तो. सो दिस इज द प्रेडिसेसर. सो एज यू आप देखेंगे तो you will find the percentage, how much percentage of completion of the project, and this is the e-property watch plan का जो परसेंटेज था. उन्होंने इस टाइप में इस शेड्यूल्स, ये टेबल्स वो डेली बनाते थे, जैसे रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स मैंने बताए थे आपको फॉर्मेट. तो एवरी कोई भी प्रोजेक्ट में ये सारा होता है, एक रिपोर्ट होता है कि आज का क्या किया, प्लान कौन सा प्लान या फिर कौन सा टास्क कंप्लीट किया, उसका प्रोसेस रिसर्च क्या था, मतलब क्या क्या उसमें लगा, कितना टाइम लगा, कंप्लीशन ऑफ परसेंटेज कितना था, ड्यूरेशन कितना लगा, स्टार्ट कब किया था, फिनिश कब किया था. ओके, एक रजिस्टर मेंटेन होता है जहाँ पे भी आप प्रोजेक्ट करते हो, उसमें ये सारी चीजें मेंशन करनी होती है जो इन्होंने की है, और उसमें इन्होंने शो भी किए हैं टेबल के साथ में. वही मैं आपको भी एसआईपी में बोलती हूँ कि इस तरह से आपको सारी चीजें बनानी है. सो इनिशिएशन एंड प्लानिंग 100% था इनका. ये प्रॉपर्टी वॉच प्लानिंग भी 100% ही हुआ. ड्यूरेशन उसका था 40 days 61 आवर्स समझिए, या फिर कुछ दिन समझिए, या फिर मंथ समझिए, व्हाटएवर. सो स्टार्ट किया था उन्होंने 1/3/17 को और फिनिश्ड हुआ 28/2/17 को. ठीक है. उसके बाद इनिशिएशन एंड प्लानिंग क्या था, वो भी 100% था. उसको भी 4 दिन लगे, जो भी टाइमिंग था, आवर्स था. ये भी उन्होंने स्टार्ट किया था 3/1/17 को, कंप्लीट हुआ 9/1/17 को, जो भी है. तो इस तरह से आपने भी प्लानिंग करना है. जब आप वर्क करते हैं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये मास्टर्स होते हैं वहां पे, जो आपको उसको फुलफिल करने होते हैं ऑन टाइम. नाउ स्कोप वर्क एंड कंडक्ट रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट, व्हाट इट इज. तो जितना भी स्कोप्स था उस वर्क के लिए 100% हुआ. 25 डेज लगे, 25 मिनट्स लगे, 25 करने के लिए. कब कंप्लीट किया, क्रिएट हाई लेवल प्लान कब कंप्लीट किया. सो ऑल
whatever the initiative what regarding that project, they just mention the chart. Okay, देखिए कितने अच्छे से उन्होंने पूरी चीजों को मेंशन किया है, यू कैन सी इट। देखिए पढ़ेंगे आप ना प्रोजेक्ट्स केसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो फ्लेक्सिबल स्केड्यूल क्या होता है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज कॉल्ड टीम कैलेंडरिंग। सबसे पहले तो आपको टीम के साथ कैलेंडरिंग करना है, डिस्कस करना है उनके प्रॉब्लम्स के साथ, फिर आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। Since most people who won't ask individual to schedule their work and stay on track, एकदम परफेक्ट पंक्चुअल रहते हैं, स्टार्ट यानी स्टार्ट, फिनिश एंड फिनिश। सो changes in the timing of procedures have a waterfall effect on the planning and scheduling of future tasks. Okay, so that is most important. What it is, the changing track, changes in timing of procedures and have a waterfall effect on the planning. जो प्लान आप करते हैं उसे सक्सेस करना ही है, नो चेंज। जैसे आज आपने बोल दिया मैं 5 बजे उठूंगा, बस बोल दिया लेकिन नो इम्प्लीमेंट, है ना। सो it's most important to implement that kind of task. For example, if a user has a task that is due on the Friday before the event, but the predecessor task is not complete, then the entire project timeline will be alert. अगर आपने बोल दिया कि मैं कल ही दूंगा और आपने नहीं दिया उसे बना के, तो सब प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। Okay, so it is important to allow for not only the additional time to complete the procedures, but also other scheduling conflicts, such as the project manager being out of the offices or another previously scheduled project, right? So this means a one day delay could potentially delay a project for 4 or 5 days as a waterfall effect impact tasks and timelines down the line. Okay, if आपकी टाइमलाइन डेडलाइन गलत हो गई है ना, तो सब गलत हो जाता है। अभी हमने देखा कोविड में 2-3 साल कॉलेजेस बंद थे, तो आप लोग भी पूरे बंद हो गए हो घर में। आपको अभी भी आप लोग ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन भी हो गया है, तो भी बच्चे ऑनलाइन में ही जैसे बात करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अभी भी वैसी ही है, राइट। सो जस्ट कम बैक, आप अभी बाहर आ जाइए इन सब चीजों से और वही सब करिए जो पहले कर रहे थे, एकदम एक्टिवली, एकदम बात करना, जो भी चीजें आपको लग रही है कि नहीं अभी स्टार्ट है और अभी आपके पास यही समय है करने के लिए, सो डू इट दैट। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स दे आर डूइंग। उन्होंने मतलब यही बताया कि डिले अगर हो जाता है तो क्यों होता है और उसपे क्या इम्पैक्ट होता है प्रोजेक्ट पे। एन इम्पोर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड द हार्डेस्ट थिंग to manage, it's not only planning your work but working your plan. So the best project managers are able to work with an agile, elastic workflow in real life. Things happen faster or slower than estimated. Okay, आपने देखा होगा जैसे पुलिस डिपार्टमेंट होता है या आर्मी होता है, उन लोग को कितना प्रेशर रहता है वर्क का, और अगर वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं या उन्हें वो टाइम पे नहीं होता है तो उनको कितनी सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जैसे अगर कोई कुछ हो गया है सिटी में, अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ पाए तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है ना, वो कहाँ से कहाँ मतलब टाइम लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, राइट। आर्मी में भी ऐसा होता है कि क्विक एक्शंस लेना होता है, क्विक डिसीजंस, डजंट मैटर कि आपकी उसमें जान भी जाए, बट सो पीपल, वैसे ही पर्सन हमें प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए लिखते हैं, गुड everything. Okay, so a key job of project is coordinating changes that impact scheduling and timeline. So in case of that kind of project and other MLSs, this can be every complex when managing multiple projects at the same time. अगर आपका पहला ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऑन सेम टाइम, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकते हो अगर आपका प्लान सक्सेस है, आप गुड प्लानर है तो, ठीक है। सो
this is the expect from the onset of any project assignment delivers. आपको जो भी प्रोजेक्ट दिए हैं वो आपको टाइम पे करने हैं, सारे असाइनमेंट टाइम पे करने हैं, डेडलाइंस को फॉलो करना है. ओके, देन by observing the best practice of agile planning, uncontrollability, flexibility के साथ, and पूरी मतलब जितनी भी आपकी एनर्जी है वो उसमें लगा देनी है. सो दैट आफ्टर दैट यू विल डू. सो यहाँ पे एक स्प्रेडशीट दी हुई है, विल चेक इट, इट्स ओपन और नॉट, मे बी नॉट. वही स्प्रेडशीट है जो हमने नो. सो ये जो ऊपर में हमने देखी थी वही स्प्रेडशीट है जो यहाँ पे उन्होंने बना के रखी हुई है विथ फीडबैक के साथ एंड ऑल. ठीक है, और उसका यहाँ पे कंक्लूजन दिया है लास्ट में प्रोजेक्ट का कि उन्होंने क्या क्या चीजें इसमें की है ना. सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट आपको अपने छोटे छोटे वर्क का बनाना है. इफ यू हैव अ पार्लर, इफ यू हैव अ कैफे, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ शॉप, वेजिटेबल शॉप, एनी काइंड ऑफ. ओके, तो उसी प्लान के साथ आपको प्रोजेक्ट management best practice are key to operating an efficient and effective multiple listing. Okay, so service, recognizing that every organization is structured differently, सबका अलग अलग होता है. ठीक है, so based on या फिर आपका क्या प्लान है उस हिसाब से आप उसे हाईलाइट करिए, उसे बनाइए, टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए, कैश फ्लो बनाइए. पहले तो बजट बनाइए, बजट के बाद उसका कैश फ्लो बनाइए, उसे एनालिसिस कीजिए, कितना कॉस्ट लगेगा. ठीक है, उस बेस पे आप उसे प्रिपेयर करिए विथ वेरीफाइड स्टाफ एंड कैपेबिलिटीज. स्टाफ कितना लगेगा, उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, हु आर एक्सपर्ट, वो कौन सा काम कितना अच्छे से कर सकता है, ऑल एंड ऑल. सो MLS may have to establish a benchmark suitable to their structure rather than the one set by that kind of project. You need to decide, you need to plan with that particular project. So what is important to remember is that the key principle of successful project management requires proper planning. यहाँ पे भी वही बताया है कि proper planning is most important, communication is most important, and execution. आफ्टर बोथ प्लानिंग कम्युनिकेशन के बाद आता है एग्जीक्यूशन, कि आप उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कौन सा टास्क किसको देंगे, किस तरह से आप उसे इम्प्लीमेंट करोगे, एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन आपका जो प्लान है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, या फिर आपका प्रोजेक्ट है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा. राइट, सो दैट इज इम्पोर्टेंट. सो थिंकिंग थॉट through the project plan is anticipation of product launch is an imperative foundations for setting expectations around product or service delivery. Depend on, अभी हम लोग देखते हैं Amazon का या Zomato का, बीच में वो पिज्जा हट का आया था कि आपको 20 मिनट्स में वो पिज्जा पहुंचाएगा. इफ ही नॉट, उसका प्रोजेक्ट था वो, तो अगर वो 20 मिनट्स में नहीं पहुंचाता है तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. सो हाउ, मतलब किस तरह से आइडियाज कम्स इन माइंड ना, एंड दे विल इम्प्लीमेंट, एंड वो सही में होता था कि 20 मिनट्स में वो करते थे. सो दैट इज द प्लान. ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, सर्विस, तो आपका सर्विस कैसा है, किस तरह से आप देते होगा. समटाइम्स हम होता है ना, जैसे ऑकेजनली हमें कोई चीज मिलती नहीं है, तो ऑन द एंड पे हमें किस तरह से उसे मैनेज करनी होती है. राइट, Yes, ma'am.
कि sorry, that is the important कि how we make a plan and how we communicate with people and execute it. Okay, so any organization, sometimes they fail to set the right expectation. Even projects that require months to complete will begin to feel long and drawn out under the best of some kind of, कहीं कहीं होता है प्रॉब्लम, बट दे विल मैनेज, आपको मैनेज भी करना आना चाहिए. सो बाय कम्युनिकेटिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रंट ऑफ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है और अगर हम एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं करते, मानती हूँ कि कभी कभी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होने की वजह से क्या होता है कि टाइम लग जाता है ना, तो उस टाइम को हमें कवर करना आना चाहिए. जैसे अगर आपको अभी बोल दिया कि आपकी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होने वाली है, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्योंकि लिखना है ना. अभी तो गूगल आपको सपोर्ट नहीं करेगा, राइट? तो लिखना है तो पढ़ना पड़ेगा. आप क्या करेंगे, सारे बुक्स, लाइब्रेरी, ये वो सब करना चालू कर देंगे क्योंकि फेल नहीं होना है, ऑफलाइन एग्जाम्स है तो, है ना. सो एक प्रोजेक्ट में भी वैसा ही होता है कि अगर एक आध रिसोर्स नहीं है या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको वो टाइम रिकर डे नाइट करके उसको कंप्लीट करना होता है, डेडलाइंस को फॉलो करना है. सो एंड डेडलाइंस को फॉलो करने के लिए व्हाट वी एक्सपेक्ट, सो यू नीड टू प्रिपेयर व्हाट इज द थिंग्स यू रिक्वायर्ड फर्स्ट. प्रायोरिटी किसे देनी है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो month to complete will begin to feel long and drawn out under the best circumstances. So by communicating expectations up front and then keeping subscribers or members up to date on the progress being made. और टीम वर्क होता है उसमें, है ना. जितना आप टीम के साथ काम करोगे उतना वो फुलफिल होता है. सो डेली सर्विस हो, डेली वर्किंग हो या मंथली वर्किंग हो, वीकली वर्किंग हो, डजंट मैटर. आईटी के पीपल्स को आपने देखा है, उनका टारगेट होता है, अगर वो टारगेट में उनका काम नहीं करते तो दे बेस्ट, इसलिए वो रात भर दिन रात वही लगे रहते हैं, उसे कंप्लीट करने के पीछे लगे रहते हैं. तो प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इट्स अ स्ट्रेस रहता है वो कंप्लीट, बट वो कंप्लीट होने के बाद सारा स्ट्रेस निकल जाता है. सो दैट इज मोस्ट. So project stress is typically reduced, performance improved, and the question है when will it be ready. माइंड में रहता है कब होगा यार, कब खत्म होगा, आप भी से एक बार एग्जाम्स हो जाए, एक बार मेरा एमबीए हो जाए. सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन योर, जब वो उसका एंडिंग चलता रहता है ना. अभी आप भी बोलते हो यार मैडम क्या बोलती रहती है, प्रोजेक्ट बनाओ, कोई बोलता है एसआईपी बनाओ, कोई बोलता है ये बनाओ, बट नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा. ओके, करोगे नहीं तो आएगा नहीं, कैसे आप सीखोगे लाइफ में. सो नेवर आस्क बाय दोज हु नो द आंसर्स. किसी को भी कुछ पता नहीं होता है, जो करता है उसे पता चलता है. सो प्लानिंग, इफ यू हैव अ प्लानिंग देन यू विल प्रिपेयर इट, राइट? यस, एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन? समझ में आया क्या? आप बनाओगे प्रोजेक्ट कि नहीं बनाओगे? यस, बनाएंगे मैम. ओके, कब? एग्जाम के बाद कि एमबीए के बाद? नो, कब बनाएंगे? कब बनाएंगे? एमबीए होने के बाद कि नो एग्जाम मैम. होने के बाद? बहुत इजी है. अरे ट्राई तो करो, दिखाओ तो. आप बनाओगे तो मैं हूं ना आपको करेक्ट करने के लिए. यस मैम. यस, जय श्री. ठीक है, ओके. Have a good day and thank you so much for listening. And this is the case I will share with you. Lot of cases you have seen in Google. अगर आपको देखना है ना छोटे छोटे केसेस, आपको आपके रिलेटेड टॉपिक के, जैसे पार्लर का देखना है, ड्रेस डिजाइनिंग, तो ऑल आर अवेलेबल हियर. So you just check and read it, and on that basis you have to prepare your own. Got it? So bye bye, take care, see you Bye soon. मैम. थैंक यू. And please attend all lectures, okay? And please answer whatever they ask. यस मैम. Thank you, ma'am.